Hello, hello. It is the test. Hello, test. Hello, hello. Raji, am I audible? Yes, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. आवाज बिल्कुल Good हाँ जी, morning, sir. sir. Yes, sir. ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ज्वाइन ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਆਣਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ओके राजे ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਮ ਆਈ ਆਡੀਬਲ Yes, sir. Yes, sir. ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਰਡਨਰ ਥਿਊਰੀ ਕਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ Yes, sir. ਗਾਰਡਨਰ ਥਿਊਰੀ हाँ जी मैं स्क्रीन शेयर करन लगा ठीक है गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थोनू स्क्रीन दिख रही है Yes, sir. स्क्रीन दिख रही है कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हैगी स्क्रीन च No, sir. No, Sir, sir. दिख रही है. कोई डिस्टरबेंस हैगी तो आप मिनिमाइज कर सकते हैं No, sir. कोई disturbance नहीं है. हाँ जी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਡਨਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਵੈਚਲਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਐਗਰੀਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Intelligence is the aggregate and global capacity of the individual, एक individual ਦੀ to think, to act purposefully, to think rationally and deal effectively with his environment। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ purposefully act ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਐਂ ਹੀ ਹਿੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਬਗੈਰ ਪਰਪਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਜੈਸਚਰਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ। ਓਕੇ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਥਿੰਕ ਰੈਸ਼ਨਲੀ, ਐਕਟ ਪਰਪਸਫੁਲੀ, ਡੀਲ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ with his environment ਚ ਡੀਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਯੂ ਆਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ YouTube ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਜ਼ ਨॉट, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। व्हाट इज इंटेलिजेंस इज नॉट अ नॉलेज, नॉलेज नहीं है इंटेलिजेंस। नॉलेज है जो एक्वायर की जा सकती है इंटेलिजेंस से, लेकिन इंटेलिजेंस नॉलेज से एक्वायर नहीं की जा सकती। इनका रिलेशन ये है, इंटेलिजेंस है आपके पास तो आप नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज है, मान सकते हैं नॉलेज है, तो वो ये सिंबलाइज नहीं करती कि आप इंटेलिजेंट हैं। नॉलेज किसी के पास भी बहुत हो सकती है। लाइक मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, इतनी किताबें पढ़ी हैं एजुकेशन की, मेरे पास नॉलेज बहुत हो सकती है, लेकिन हो सकता है इंटेलिजेंट आप मेरे से ज्यादा है। नॉलेज और इंटेलिजेंस में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पास नॉलेज होती है वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, लेकिन हम हमारी डेली लाइफ में ये मान लेते हैं कि जिसके पास नॉलेज है जी वो इंटेलिजेंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इनका जरूर रिलेशन जरूर है, एक से दूसरे को एक्वायर करने में हेल्प होती है। इंटेलिजेंस है आपके पास, आप नॉलेज को एक्वायर जल्दी कर सकते हो, अच्छे तरीके से कर सकते हो, बढ़िया तरीके से कर सकते हो, पर ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास नॉलेज है तो आप इंटेलिजेंट हो जाओगे, ये नहीं है। नॉट अ टैलेंट, टैलेंट बहुत जनों में होता है। टैलेंट अगर कोई रोड पे तमाशा दिखा रहा है उसमें भी टैलेंट है। ठीक है, एक अगर आप कहीं कोई गाना गा रहा है वो भी एक टैलेंट है। टैलेंट से हम कहें तो इंटेलिजेंस देखी जा सकती, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, इस तरह से हम हमारी डेली लाइफ में इवेल्युएट करते हैं इंटेलिजेंसी को, है ना। आगे की हम बात करते हैं जब, तो उसके बारे में कह रहा है मेमोरी नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें मेमोराइज कर लेते हो, उसका मतलब भी ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट। इवन साइकोलॉजिस्ट तो ये कहते हैं जो बहुत सारी चीजें याद कर लेते हैं, जिनकी मेमोरी बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी सबसे ज्यादा होंगे, उनको अपने अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस भी ज्यादा याद रहते हैं। ठीक, इसीलिए हमारा एक मैकेनिज्म बना हुआ है मेमोरी का कि हम चीजों को भूल जाते हैं। अक्सर हम वो चीजें भूलते हैं जिनके साथ हमारे एक्सपीरियंस प्लेजेंट नहीं होते।
हमारे प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं होते, हम उन चीजों को भूल जाते हैं। हमारी मेमोरी है फॉरगेटिंग उसके साथ साथ चलती है, लर्न करने में साथ में साथ आपको फॉरगेटिंग हो जाती है। मैंने ये चीज पढ़ाई, आपने सुन ली, सुनने के बाद सबसे पहली क्या चीज होती है? फॉरगेटिंग। ओके, तो यही चीज हम बात कर रहे थे। तो इंटेलिजेंस है वो मेमोरी भी नहीं है, उसके बाद कोई स्किल भी नहीं है। राइटिंग किसी की अच्छी होती है, किसी की रीडिंग अच्छी होती है, किसी की सिंगिंग अच्छी है, किसी की कोई स्किल अच्छी, किसी की ड्राइंग एंड पेंटिंग अच्छी है, तो वो स्किल भी नहीं है। ओके, ये चीजें इंटेलिजेंस नहीं है। इनको हम इंटेलिजेंस से कंपेयर जरूर करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन नहीं है ये इंटेलिजेंस। आपको कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज साथ में साथ पूछ लीजिएगा, बाद में अगर निकल जाएगा फिर आप भूल जाएंगे, या नोट कर लीजिएगा, मैं से कभी मर्जी पूछ सकते। ये लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा जी। हेलो, Yes, आपकी sir. आवाज हाँ, किसी की डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से, कभी क्या जी। अब हम बात करते हैं नेचर क्या है इंटेलिजेंस की। नेचर है इननेट पावर है हमारी, ठीक है। जो इंटेलिजेंस है ये इननेट पावर है, इट इज विद इन यू, बाहर नहीं है, आपके अंदर है। आपके इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलिजेंस आपके पास है और कहीं पे नहीं है। इसके मतलब कहने का ये है, आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करती है एज एन इंडिविजुअल। हम कहें आपके ब्रेन में, आपके ऊपर वाले खाने में एग्जिस्ट करती है। इननेट पावर है, इननेट, इनबॉर्न, इनबॉर्न है इंटेलिजेंस, इननेट है। इनबॉर्न का मतलब आप जन्म से ही इंटेलिजेंस को लेके आते हो। ये नहीं होता है कि आप की इंटेलिजेंस है जो वो बाद में कभी डेवलप होती है आके पूरी, नहीं। एक कैपेसिटी है आपके अंदर, इतनी सी है, बाद में डेवलप हो रही है वो एक अलग बात है, लेकिन वो इननेट है, इनबॉर्न है, जन्म से लेके आते हो उसे आप। ओके, इट इज बाय हेरिडिटी। ओके, कोई ऐसे नहीं कह सकते हम कि हेरिडिटी नहीं जी, इन्वायरमेंट में बन जाती है अपने आप इंटेलिजेंस। पहले तो जीरो होती है, बाद में आके अपने आप बढ़ जाती है इंटेलिजेंस, ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है जी। डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हो सकता है कि रीजनिंग की प्रॉब्लम कोई बच्चा बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है, मैथमेटिकल बैकग्राउंड का है, रीजनिंग की प्रॉब्लम वो जल्दी सॉल्व कर देता है, पर जब उसे डील करना होता है अपने घर वालों के साथ और उसे अपनी कैपेसिटीज को ही इवेल्युएट करना होता है, तो वो कर नहीं पाता है। ठीक, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कैपेसिटी में वेरी करती है इंटेलिजेंस। आपके पास ये नहीं ज्यादा हो सकती है इंटेलिजेंस, मेरे पास कम हो सकती है, और तीसरा बंदा है उसके पास और भी ज्यादा हो सकती है, ऐसे भी इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं हेल्पफुल इन लर्निंग। ये लर्निंग में हमें हेल्पफुल होती है जी, लर्निंग में हमें हेल्प करती है जब हम लर्न करते हैं, ठीक है। आपको पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? डिफर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। आगे भी थोड़ा सा इसके बारे में मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना ही समझ लीजिए कि आप में और मेरे में डिफरेंस है इंटेलिजेंस में, आप में और आपके ब्रदर सिस्टर में भी डिफरेंस है इंटेलिजेंस में। ये नहीं कि हमारी इंटेलिजेंस एक जैसी होती है, यही समझना है यहाँ पे आपको। तो हेल्पफुल इन लर्निंग, लर्निंग में आपको हेल्प करती है। आपने कोई भी चीज लर्न करनी है, साइकिल चलाने से लेके आपने कोई ऐसे लर्न करना है, कोई स्टोरी लर्न करनी है, कोई कंप्यूटर लर्न करना है, इन सब चीजों में ओवरऑल लर्निंग में आपको हेल्पफुल होती है। लर्निंग के डोमेन कितने होते हैं? कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव, या साइकोमोटर जिसे हम कहते हैं,
ठीक है, आपके चलने फिरने में भी आपको इंटेलिजेंस ही हेल्प करती है, आपकी बॉडी मूवमेंट लेने में भी आपको इंटेलिजेंस हेल्प करती है, आपके इमोशंस को भी इमोशंस भी कैसे होंगे उसमें भी आपकी इंटेलिजेंस हेल्प करती है। जब हम लर्निंग कह रहे हैं तो लर्निंग का मतलब इमोशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, वहां हर चीज ले रहे हैं लर्निंग में हम। ठीक है, वही नहीं जो स्कूल में सीखते हैं वो चीजें भी जो आप घर पे सीखे हैं जन्म से। इंटेलिजेंस और लर्निंग को इस तरह से जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? प्लीज मेरे को बता देना अगर समझ में नहीं आएगा तो। यस यस सर। यस सर, आ रहा है, समझ आ रहा है। मैं नहीं तो चलता जाऊंगा अपनी स्पीड से, फिर आप कहेंगे। हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट, इंटेलिजेंस आपको एडजस्टमेंट में भी हेल्प करती है। आप अपने इंटेलिजेंट बिहेवियर की वजह से ही एडजस्टमेंट कर पाते हैं, एडजस्टमेंट कर पाते हैं घर पे, एडजस्टमेंट कर पाते हैं अपने पीयर ग्रुप में, दोस्तों में, कॉलेज में, टीचर्स के साथ। ओके, जो मैरिड है वो हस्बैंड वाइफ के साथ। आप अपने इंटेलिजेंट बिहेवियर के साथ ही एडजस्टमेंट कर पाते हैं, अदरवाइज एडजस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, अदरवाइज आप जिस तरह से सोच रहे हैं उसी तरह से सोचेंगे। अगर आप इंटेलिजेंट है तो दूसरे व्यू पॉइंट से भी सोचेंगे और किसी के व्यू पॉइंट से भी। उसे हम कहते हैं गार्डनर की थ्योरी में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अपने आप की कैपेसिटीज को समझने को कहते हैं इंट्रापर्सनल। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट, हेल्पफुल इन फेसिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, प्रॉब्लम को हल करने में आपकी इंटेलिजेंस हेल्प करती है। इन्फ्लुएंस बाय द हेरिडिटी। अब मैं अगर आपको कहूंगा आप मानेंगे नहीं, आपकी हेरिडिटी से आती है आपकी इंटेलिजेंस। हम 90% से ऊपर आज के टाइम में स्टडीज हो चुकी हैं जो प्रूव करती हैं 90% से ज्यादा कोरिलेशन है हेरिडिटी से इंटेलिजेंस का। आपकी हेरिडिटी से आती है, आपके पेरेंट्स की जिस तरह से हेरिडिटी होगी, जिस तरह से आपके एंसेस्टर की इंटेलिजेंस होगी, वो आपकी इंटेलिजेंस को प्रभावित करती है। ठीक, ओके। तो इसमें भी कई Yes, थ्योरीज sir. होती हैं कि नॉर्मल की तरफ ट्रेवल करती, जिनकी नीचे होती है वो ऊपर जाते हैं, नॉर्मल की तरफ ट्रेवल करती है, जिनकी ऊपर होती है उनकी नीचे आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी नॉर्मल की तरफ ट्रेवल करती है इंटेलिजेंस। इसके कई एविडेंस मिल रहे हैं। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होती है। ज्यादातर आपको देखने को मिला होगा एक फैमिली में एक डॉक्टर है तो दूसरा भी डॉक्टर होगा, तीसरा भी वहां डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। ठीक, एक तरह का प्रोफेशन ही जो हम कहते हैं एलीट प्रोफेशन है, अच्छे प्रोफेशन जिन्हें मानते हैं, तो वहां पे ये चीज देखने को मिलती है। ठीक, हेरिडिटी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट, देखिए हेरिडिटी से इंटेलिजेंस आती है, हेरिडिटी से आपको इंटेलिजेंस दे दी इतनी, लेकिन वो नरिश तो एनवायरनमेंट में होनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कह रहा हूँ, आप एक बच्चे को कंप्यूटर चलाते हुए देख रहे हो, आप कहते हो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है जी, इसे तो कंप्यूटर भी चलाना आता है, ये तो मोबाइल भी चला लेता है, बहुत अच्छा जी। आपने उसे टैग लगा दिया इंटेलिजेंस का। एक बच्चे को देख रहे हो उसे कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता, उसे मोबाइल भी नहीं चलाना आता, आप क्या कह रहे हो उसे तो कुछ आता नहीं है, ये तो ऐसे ही लगता है डल सा। लेकिन उसमें ये भी हो सकता है कि जो फैसिलिटीज मिली है, जो एनवायरनमेंट मिला है वो उसका कब मिला है, उसके फैमिली वाले उसे एनकरेज कर रहे हैं कि बेटा मोबाइल चलाओ, बेटा कंप्यूटर चलाओ, और एक एक रुपए में कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, वो कहां से सीख लेगा। सो इंटेलिजेंस है वो इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होती है। 5% का जो फर्क पड़ता है 10% का, वो इन्वायरमेंट से पड़ता है, फैसिलिटीज से पड़ता है जो आप दे रहे हैं उससे बच्चे को, उसका 5-7% से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बेसिक इंटेलिजेंस हेरिडिटी से आती है, यही माना गया। ठीक है,
सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल रेशियल इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस। देखिए जिसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा उसे फैसिलिटीज होंगी, वो एक्सप्लोर कर पाएगा सारी चीजों। कल्चर भी आपको इसी तरह से हेल्प करता है इंटेलिजेंस में। जैसे पारसी कल्चर है, उनका कल्चर है, क्या कल्चर है कि पढ़ते बहुत हैं, ठीक, बिजनेस भी बहुत अच्छा करते हैं, ओके, ईमानदार होते हैं, ये उनका कल्चर है जी। ठीक है, रेशियल फैक्टर की बात करते हैं तो रेशियल फैक्टर भी कई इन्फ्लुएंस करते हैं इंटेलिजेंस को। लाइक आपने देखा होगा कि अफ्रीकन लोग होते हैं वो कम इंटेलिजेंट हैं इन्हीं सोशो इकोनॉमिक, कल्चर और रेशियल फैक्टर के कारण। अफ्रीकन लोगों को कम इंटेलिजेंट आंका जाता है कंपैरेटिव टू यूरोपियन एशियंस। ठीक है, एशियंस के मुकाबले, अमेरिकन्स के मुकाबले उनको कम इंटेलिजेंस आंका जाता है इन्हीं फैक्टर्स की वजह से, सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल और रेशियल फैक्टर्स है। नो डिफरेंस इन इंटेलिजेंस ड्यू टू जेंडर। जेंडर से कोई भी डिफरेंस नहीं हो जाता है इंटेलिजेंस का, मेल फीमेल में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब हर बार आ जाता है अखबारों में, लड़कियों ने मारी बाजी 10वीं के पेपर में, ठीक है, लड़के तो बेचारे ऐसे ही रह गए, वो तो इंटेलिजेंट ही नहीं है। अब मैं बता रहा हूं कि लड़कों की एनालिटिकल एबिलिटी ज्यादा होती है, लड़कियों की ग्रास्पिंग और विजुअल मेमोरी, ठीक है, और अगर हम कहें राइटिंग पावर तो ज्यादा होती है। ये फर्क रह जाता है, जेंडर डिफरेंस इस तरह का जरूर है, लेकिन इंटेलिजेंस के स्कोर में कोई फर्क नहीं। इस तरह से नहीं है कि वो लड़कों को ऐसे नहीं कह रहे आप विजुअल मेमोरी बना लो, उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, एक तरह की होती है सब में, किसी की ज्यादा डेवलप हो जाती है किसी की नहीं। लाइक इंटेलिजेंस का एक और डिफरेंस बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा लड़कियों की विजुअल मेमोरी इतनी ज्यादा होती है लड़कियों की, आप कलर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस कर लेते हैं, ये ग्रीन है, ये वाला ग्रीन है, ये वाला ग्रीन है, ये वाला रेड है। लड़के नहीं उतना कर पाते, ठीक है। तो उनकी एक कहे ना कि सेंसेस में हम कहें थोड़ा बहुत हम कहें ये फर्क आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि हमारे यहाँ जो नरिशमेंट है जेंडर के अकॉर्डिंगली अलग अलग की जा रही है हमारी सोसाइटी में, इसीलिए ये जो डिफरेंस देखने को मिलते हैं थोड़े से उनसे यानी प्रभाव पड़ रहा है आगे आगे। ठीक है, इस तरह से आप कलर में भी डिफरेंस निकाल लेते हो, आप बहुत कुछ कर लेते हो इस तरह का, जो लड़के बहुत कम कर पाते हैं, ठीक, और लड़के ऐसा बहुत कुछ करते हैं जो आप कम कर पाते हो। वो हमारे यहाँ जेंडर के अकॉर्डिंग जो हम कहें ना कि परवरिश हो रही है उसी के कारण है वो, ठीक है जी। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि जेंडर के कारण इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता, लड़के लड़कियों से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, लड़कियां लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंस है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है जी, ज्यादातर बच्चे एवरेज होते हैं इंटेलिजेंस में, एवरेज होते हैं। उन्होंने कहा कि 68% के करीब करीब बच्चे जो होते हैं वो एवरेज होते हैं इंटेलिजेंस में, 70% आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि 13% होते हैं वो अबव एवरेज होते हैं और 13% ही बिलो एवरेज होते हैं, ठीक। और 2% इस तरह के स्ट्रीम होते हैं जो आइंस्टाइन जैसे, ठीक है, इस तरह से होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस चीजेस इन मिडल ऑफ एडोलेसेंट। हाँ, इन्होंने कहा कि मिडल ऑफ एडोलेसेंट पे पूरी हो जाती है जो डेवलपमेंट है इंटेलिजेंस की। देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, नॉलेज एक्वायर की जा सकती है इंटेलिजेंस से, वो मैं आपको पहले ही बता चुका। अब मैंने 2-3 चीजें बतानी है, उसके बाद हम गार्डनर की थ्योरी कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बना रहा था आपके माइंड में इंटेलिजेंस का, शायद इसके बारे में आपको कुछ लिखना भी ना पड़े, ठीक। तो ये मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि इंटेलिजेंस होती क्या है,
क्योंकि ये आगे भी काम आएगी। द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज वेरी रैपिड इन फर्स्ट 6 ईयर। 6 साल पहले होते हैं ना बच्चे की लाइफ के, उसमें इंटेलिजेंस है जो वो बहुत ज्यादा रैपिड होती है। इंटेलिजेंस की रेट बहुत ज्यादा तेजी से इंटेलिजेंस ग्रो करती है बच्चे की। जब 6 साल ग्रो कर जाती है, 2 साल स्लो डाउन हो जाती है फिर इंटेलिजेंस की ग्रोथ। सेकंड पॉइंट में यही कहा गया है। देन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज स्लो फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। Around 90% of the development of intelligence take place by the time an individual is 10 year। 10 साल के बच्चे की इंटेलिजेंस 90% कवर हो जाती है। और 16 साल तक का जब बच्चा होता है तो उसकी इंटेलिजेंस है वो मैक्सिमम तक पहुंच जाती है जितनी उसने पहुंचना होता है। उसके बाद बहुत कम बदलाव आते हैं पॉइंट्स में जो विजिबल नहीं होते हैं या जिसे हम असेस नहीं कर पाते हैं, उतने बदलाव आते हैं सिर्फ। ठीक, आगे जी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं जॉनसन एंड स्टर्न की। ठीक, आप कहेंगे ये क्या पढ़ाने लग गया, आपने पढ़ाना गार्डनर था। मैंने एक बेस सेट करना है पहले थ्योरीज का। जॉनसन एंड स्टर्न मानते थे इंटेलिजेंस सिर्फ एक फैक्टर है, सिंगल यूनिट है, सिंगल कैपेसिटी। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो रीजनिंग की प्रॉब्लम है, चाहे वो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है, चाहे वो इंट्रापर्सनल प्रॉब्लम है, मेरे अंदर की प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई म्यूजिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम आ जाए उसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। जॉनसन एंड स्टर्न ये मानते थे, मानते थे इंटेलिजेंस इज अ सिंगल कैपेसिटी, एक यूनिट है, अलग अलग चीजें नहीं है जैसे गार्डनर मानता है। फिर क्या हुआ, उनकी काफी ज्यादा धुलाई भी हुई इस बात पे। धुलाई का मतलब क्रिटिसिज्म। तो उनको कहा गया कि आप कैसे कह सकते हैं, आप गाना अगर अच्छा गाते हैं तो आप एक अच्छे टीचर भी होंगे, ये हो सकता है? आप अगर एक अच्छे टीचर हैं तो आप अच्छा गाना भी गाएंगे, क्या ये हो सकता है? नहीं होता है। इसीलिए उनकी क्रिटिसिज्म हुई और उनको ये जो थ्योरी थी इससे पीछे हटना पड़ा और इससे आगे जो थ्योरी दी गई थॉर्नडाइक द्वारा दी गई। थॉर्नडाइक क्या कहता था, उसके अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस थी वो अलग अलग तरह की कैपेसिटी से मिलके बनी हुई थी। ठीक है, इंटेलिजेंस इज कंप्राइज्ड ऑफ हाईली पर्टिकुलराइज्ड एंड इंडिपेंडेंट फैकल्टी। इंडिपेंडेंट फैकल्टी अलग अलग की बात कर रहा है। कौन कौन सी इंडिपेंडेंट फैकल्टी की बात कर रहा है? सबसे नीचे आ जाओ स्लाइड में। 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। वो कहता है ये 3 तरह की इंटेलिजेंस होती है। थॉर्नडाइक भैया ने ये कहा। आगे कह रहा है देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन देम। इन तीनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। सिग्निफिकेंट होगा लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं होगा जिसे हम मान सके कि रिलेशन है। मेरे में कम आ सकता है, आप में ज्यादा आ सकता है। ऐसे नहीं कह सकते कि पक्का रिलेशन निकलेगा ही निकलेगा, कहीं 0 हो सकता है, कहीं ज्यादा कम भी हो सकता है। दिस थ्योरी डिस्टिंग्विश 4 एट्रीब्यूट और एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अब वो क्या कह रहा है कि ये 3 तरह की इंटेलिजेंस होती है हम सब में, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से रिलेट नहीं है, अलग अलग चीज को हम अलग अलग जगह यूज करते हैं। ठीक, तो अलग अलग जगह यूज करते हैं। इसके बाद ना मैं एक और लिंक सेंड करूंगा, मेरे ख्याल में ये खत्म हो जाएगा। तो वो क्या कह रहा है कि 4 जो एट्रीब्यूट होते हैं इंटेलिजेंस के, उसके बारे में उसने बात की है। 9-10 मिनट पड़े हैं, इसमें खत्म करने की कोशिश करता हूं वैसे मैं। तो वो कह रहा है लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड, ये 4 एट्रीब्यूट होते हैं। लेवल क्या, किस लेवल की आइटम, किस लेवल की प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको, इस लेवल की है, इस लेवल की है, इस लेवल की है। अलग अलग लेवल होता है ना प्रॉब्लम का, डिफिकल्टी लेवल होता है अलग अलग, उसके बारे में बात करता है। रेंज, उस डिफिकल्टी लेवल की कितनी आइटम आपको दी, 10 दी, 5 दी, 4 दी, 2 दी,
हो सकता है एक क्वेश्चन दिया वो आपको आता था इसीलिए आपने हल कर दिया, मैं मान लूंगी आपकी ये इंटेलिजेंस लेवल है, नहीं। उस लेवल की कितनी आइटम आपने कवर की, रेंज, ये आप थोड़ा कम समझेंगे, इसे समझने की इतनी जरूरत भी नहीं है। एरिया किस तरह का था, मैथमेटिकल था, इंटरपर्सनल था, इंट्रापर्सनल था, किस तरह का था एरिया, स्पीड, कितनी जल्दी आपने जवाब दिया। थॉर्नडाइक ये कहता है, बेसिकली थॉर्नडाइक ने 3 तरह के इंटेलिजेंस के बारे में बात की, ये आपको याद रखने की जरूरत है अगर आपको कहीं आ भी जाता है। फिर इसके बाद स्पीयरमैन थे, उन्होंने कहा 2 फैक्टर थ्योरी। वो क्या मानते थे, 2 तरह की इंटेलिजेंस होती है, एक होती है आपकी स्पेसिफिक स्पेसिफिक एक होती है आपकी जर्नल। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बहुत सारी हो सकती है, जैसे आपको खाना बनाना भी आता है, ठीक, आपको सिंगिंग भी बहुत अच्छी आती है, ठीक, आपको अगर कहें स्टडी में भी बहुत अच्छे हो। इस तरह से आपकी अलग अलग स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो सकती हैं। स्पेसिफिक S1 S2 दीज आर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। एक यानी खाना बनाना है, दूसरा क्या है, दूसरा है केक बनाना। दोनों हो सकता है कि कोरिलेटेड भी है, कोरिलेटेड है जिससे वो जनरल इंटेलिजेंस है। कुछ चीजें होती हैं हमारी लाइफ में जिसे हम हर जगह यूज करते हैं, हम जिसे अपनी जनरल इंटेलिजेंस कह देते हैं। हर हमारी जो लाइफ में एक्टिविटी होगी उसमें उसका यूज होगा जनरल इंटेलिजेंस। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का स्पेसिफिक प्लेस पे यूज होगा, लेकिन साथ साथ उसके जनरल इंटेलिजेंस भी लगेगी। ये बात उसने कही थी, देयर आर 2 फैक्टर, जनरल और स्पेसिफिक। उसने फिर ये भी बात की, जनरल इंटेलिजेंस इनबॉर्न होती है, इनेट होती है, हेरिडिटी से मिलती है। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस आप इन्वायरमेंट में सीखते हो, जैसे कुकिंग, ये सारा कुछ आप स्पेसिफिक है ना, ये आप इन्वायरमेंट में सीखते हो। और जनरल जो आपकी है वो आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी है। इस तरह से इसने 2 फैक्टर थ्योरी दी। अब हम गार्डनर की बात करते हैं, जल्दी से बात करेंगे इसकी। उसने कहा बॉडीली एंड किनेथेटिक इंटेलिजेंस, वर्बल, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, और विजुअल और स्पेशियल एबिलिटी, म्यूजिकल एबिलिटी। अब हम बॉडीली एंड किनेथेटिक की बात करते हैं। इसमें बॉडी मूवमेंट, गुड एट फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स, डांस, ठीक है। बॉडीली एंड किनेथेटिक इंटेलिजेंस, जो अपने हाथ पैर मोड़ने में उनको बहुत आसानी होती है, बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उसे बॉडीली एंड किनेथेटिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। इंजॉय एक्टिंग और परफॉर्मिंग, गुड एट बिल्डिंग एंड मेकिंग थिंग्स। जैसे आपने देखा होगा कोई मूर्ति तराशता है, उसमें भी उसे किस तरह से हाथ हिलाने हैं, क्या करना है, उसे वो पता होता है। पेंटिंग बनाता है, वो भी बॉडीली एंड किनेथेटिक इंटेलिजेंस में आ जाती है, किस तरह से उसने स्ट्रोक्स देने हैं ब्रश के, ठीक है। लर्न बेस्ट बाय डूइंग समथिंग फिजिकली रादर देन रीडिंग और हियरिंग अबाउट इट। वो उन्हीं चीजों को करके सीखते हैं ज्यादा, ठीक, रादर देन रीडिंग और हियरिंग। वो सुन के नहीं सीखते कुछ नहीं। बॉडीली एंड किनेथेटिक इंटेलिजेंस इंक्लूड एथलेटिक, डांसर, एक्टर, सर्जन, डॉक्टर, बिल्डर्स और सोल्जर। ये सारे करके सीखते हैं। एथलेटिक्स भी करके सीखी जा सकती है। ये सारी चीज क्लियर ही होगी आपको, क्लियर है ना। जल्दी से क्वेश्चन होगा कोई, अब हम बाद में कर लेंगे, लेकिन Yes, sir. इसे हम क्लियर करें। हाँ जी। वर्बल एंड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वर्ड्स, स्पोकन और रिटन, इस तरह की होती है, ठीक है। पीपल विद हाईली वर्बल इंटेलिजेंस डिस्प्ले फैकल्टी विद वर्ड्स एंड लैंग्वेज, ठीक है। इस तरह से हो जाता है। तो वर्बल लैंग्वेज में उनकी कमांड होती है। गुड एट रीडिंग, राइटिंग, टेलिंग स्टोरी, मेमोराइजिंग वर्ड अलोंग विद डेट्स, उनको तरीके भी याद रहती है अच्छे तरीके से। लर्न बेस्ट बाय रीडिंग, टेकिंग नोट्स, लिसनिंग, लेक्चर एंड डिस्कशन एंड डिबेट, इनसे वो बहुत अच्छे तरीके से लर्न करते हैं। ये मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है, आप
देख सकते हैं जो लाइंस अच्छी लगेंगी, किताब में बहुत कम दिया हुआ है। स्किल्ड एट एक्सप्लेनिंग, टीचिंग एंड ऑरेशन, ठीक है, ऑरेट बढ़िया कर लेते हैं, और स्पीकिंग में वो अच्छे होते हैं, ठीक है। लर्न फॉरेन लैंग्वेज वेरी इजीली एंड दे हैव हाईली वर्बल मेमोरी एंड रिकॉल, वो मेमोरी और रिकॉल अच्छे तरीके से कर देते हैं, आपको वर्ड टू वर्ड बता देते हैं, आपने ये बात की थी। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मल्टीपल सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर्स, इस तरह से लैंग्वेज को इजीली समझते हैं। आपको यही बस बेसिकली चीज रखनी है अपनी, और ज्यादा पंगों में ना भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इंटेलिजेंस इज हाईएस्ट इन राइटर, लायर, फिलोसफर, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन। आगे हम बात करते हैं लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की। ये आप समझ ही गए होंगे, मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, रीजनिंग में अच्छे होते हैं, नंबर्स में अच्छे होते हैं। मैथमेटिक्स में, चेस में, कंप्यूटर में अच्छा तरीके से परफॉर्म करते हैं, न्यूमेरिकल एक्टिविटीज में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो इनकी जो रीजनिंग कैपेबिलिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। उनका एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न ऑफ रिकॉग्निशन होता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, जो चीज नहीं भी देख रहे उसे भी सोच सकते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग होती है उनकी, ठीक है, वो अच्छे तरीके से उनकी एबिलिटी है हर चीज को परफॉर्म करने की। ये होते हैं मैथमेटिशियन, इंजीनियर, डॉक्टर, इकोनॉमिस्ट। पर्सनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दो बंदों में इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन में ये सामने आती है, ठीक है। पीपल विद हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आर टेंड टू बी एक्सट्रोवर्ट। पर्सनालिटी की तीन टाइप की गई है। इंट्रोवर्ट जो अपने आप पे अंदर ही रहते हैं, अंतर्मुखी, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, एक होते हैं एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट बाहर मुखी होते हैं, लोगों से मिलने गिलने में बहुत अच्छा लगता है, सोशलाइज्ड होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बाय देयर सेंसिटिविटी एंड अदर मूड्स ऑफ फीलिंग। इस तरह से वो क्या है कि और किसी का जिस तरह का मूड है उस तरह से वो सेंसिटिव हो जाते हैं, किसी को उदास देख के खुद भी उसी तरह का फील करने लगते हैं, एक्सट्रोवर्ट टाइप कहते हैं। कोऑपरेट इन ऑर्डर टू वर्क, बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते हैं, ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं सभी के साथ, ठीक है। कम्युनिकेट बहुत इफेक्टिवली करते हैं ये सारे, ठीक है। और अच्छे से सद्भावना अपनी जो है दूसरों के साथ जता सकते हैं ये। बहुत अच्छे होते हैं औरों से डिस्कशन में, डिबेट में, और औरों के साथ वर्क करने, ठीक है। पॉलिटिशियन, मैनेजर, टीचर, इस तरह के इसमें आते हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल की जब हम बात करते हैं तो इंट्रापर्सनल अपने आप की कैपेसिटीज के बारे में कितना पता है, उनको अपने आप का कितना पता है, ये इंट्रापर्सनल में आता है। उनको अपनी एबिलिटीज के बारे में कितना पता है, अपने इमोशंस के बारे में, अपने गोल्स, अपने मोटिव, अपने कैपेबिलिटीज, इनके बारे में कितना पता है, ठीक है। और इस तरह के बंदे बेसिकली साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, फिलोसोफर्स, इस तरह के होते हैं, और साइंटिस्ट होते हैं, राइटर होते हैं, ठीक। सेल्फ अवेयरनेस कितनी होती है। विजुअल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं तो विजुअल इंटेलिजेंस में हम बात करते हैं कि उनको विजन की जजमेंट कितनी है, कोई चीज वो देख रहे हैं तो उसे एज इट इज अपने दिमाग में उतार लेते हैं, ठीक है। और वो मेंटली उन सारे ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इस चीज को इस चीज की जगह, इस चीज को इस चीज की जगह रख के देख सकते हैं अपने माइंड में, ठीक है।